All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, Sarvesh. Can you guys hear me and see the screen? Now unmute. हाँ, ठीक है. Yeah. Good morning, everyone. So last class में हम लोगों ने effect of concentration on rate of reaction वाला part खत्म कर लिया था, right? And as part of that हम लोगों ने कुछ questions भी try करे थे, जिनके doubts वगैरह मैंने discuss किए थे. Although थोड़े से doubt का discussion और बचा हुआ है. So I will find out that time जब हम लोग doubts का discussion कर सकेंगे. But in the meantime, I don't want to use the entire lecture in doubts only. तो मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, ठीक है? So you remember हम लोगों ने starting में discuss किया था. What are the three important factors that affect the rate of a reaction? एक था catalyst, दूसरा था temperature और तीसरा था concentration. ठीक है? या फिर like उल्टा बोल देता हूँ, concentration, temperature and catalyst. So concentration वाला part हम लोगों ने कर लिया था, देख लिया था. It is the temperature and catalyst wala part which we would want to now explore and understand, right? So let's look at this effect of temperature. How is the effect of temperature on the rate of reaction? अब आपके सामने जो पहला तरीका मैंने लिखा है, that is actually an you can say an empirical method. ठीक है? empirical method क्या होता है? Does anyone know what empirical word means? So empirical means that it is not based upon some hardcore scientific research. ठीक है? It is mostly experimental data और उस experimental data से एक pattern figure out करने की कोशिश करी गई है and उसको एक बहुत ही generalized approximated तरीके से present किया जा रहा है. Right? क्या है वो finding? This is called as temperature coefficient. ठीक है? This is to highlight the fact that temperature has a really significant impact on the rate of reaction. So यहाँ पर आप notice करोगे there is this term called as temperature coefficient. ऐसे short में हम लोग TC से represent करते हैं. This is what rate constant at T plus 10 degrees centigrade upon rate constant at T temperature. ठीक है? तो ratio of rate constant of a reaction at two different temperatures differing by 10 degrees centigrade. This is known as a temperature coefficient of the reaction. Now अगर कुछ बोला नहीं जाता है, ठीक है, nothing is mentioned, then ये जो temperature है by default that is taken as 25 degree centigrade. नीचे वाला जो K है वो 25 degree centigrade का rate constant है और ऊपर वाला जो K है वो 35 degree centigrade का rate constant है. And ये जो ratio रहता है, ठीक है, ये जो temperature coefficient रहता है, typically इसका value temperature coefficient of a reaction rate is generally equal to 2 to 3. 2 से 3 के बीच में ये वैल्यू रहती है. ठीक है? नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ये एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है. अब इसको यूज कैसे करा जाता है इन क्वेश्चंस? लाइक अगर वैसे तो चांस कम है इससे कोई क्वेश्चन बनेगा इस तरीके पर बेस्ड, बट लेट्स से अगर बन भी जाता है तो हाउ वुड दैट क्वेश्चन लुक लाइक? सो बोला जा रहा है कि इस एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है. इसको कैसे रीड करोगे? व्हाट डज हाउ विल यू रीड दिस? दैट हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर द रेट और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के जंप पर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स थ्राइस ऑफ व्हाट इट वाज. तो आपसे पूछा जा रहा है
that अगर rate of reaction 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करा जाता है and 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करा जा रहा है, तो what will be the increase? तो आप बोलोगे कि ठीक है, ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसको ऐसे रीड करना है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स. तो मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर R है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3R हो जाएगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे 9R एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से. ठीक है, तो दिस इज एन अप्रोक्सीमेटेड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, समझ में आया सबको ये? व्हाट डज टेम्परेचर कोएफिशिएंट वर्ड मीन? ठीक है, कम यूज होता है, बट कभी किसी क्वेश्चन में कहीं पर आ जाए तो आपको वर्ड पता होना चाहिए. ठीक है, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन वी रेफर टू दिस थ्योरी that is called as Arrhenius theory of collisions. This is actually a theory that will help us better understand how rate of reaction is impacted by temperature. Now, before I start this theory, Arrhenius theory of collision, isme let me explain the use of the word collision. Now, you remember गैशियस स्टेट चैप्टर में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टॉपिक के अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था. याद है एक टर्म कोलिजन फ्रीक्वेंसी इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? कोई है जिसको फॉर्मूला याद हो? Z is equal to root 2 pi d square u bar into n upon v. ठीक है, नहीं भी याद होगा तो चलेगा. ये क्या था? What was this representing? What did this collision frequency का definition represent? It represented the number of collisions of a molecule per second. ठीक है, एक मॉलिक्यूल एक सेकेंड में कितने कोलिजन कर रहा था, राइट? एंड देन हम लोगों ने इसको वापस n अपॉन v से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करा था. तो यू रिमेंबर वी हैड said that this will be the total number of collisions, bimolecular collisions happening in 1 second. याद आया? Total number of bimolecular collisions that would be happening in 1 second का ड्यूरेशन. सो ये जो थ्योरी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन, this theory is like a kinetic theory of gases based model of trying to understand the rate of reaction from KTG perspective. ठीक है, आप खुद अगर थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो, हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली मॉडल करना चाहते हैं. ठीक है, मतलब मान लो ये एक रिएक्शन वेसल है, इस रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट्स आर गोइंग इनटू प्रोडक्ट, राइट? R1 प्लस R2 इज गोइंग P1 प्लस P2, ऐसा कुछ हो रहा है. तो हम लोग क्या फोकस करना चाहेंगे? हम लोग सोचना चाहेंगे या देखना चाहेंगे कि रिएक्शन कब होता है? जब R1 R2 आपस में मिलते हैं, राइट? R1 R2 जब आपस में मिलेंगे तभी तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. So if I was to mathematically try to study the rate of reaction, I should study how frequently R1 and R2 are colliding with each other to form the products. है कि नहीं? That should be the starting way or approach that I should study the
collisions between these reactant molecules. And of course, not every collision is going to yield product molecule. That is, I think, all of us can agree कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर collision between reactants is going to make the products. There are going to be certain criteria which, if a collision satisfies, then we should see a reaction happening. ठीक है? So इन्हीं lines पे हम लोग explore करते हैं this theory that is called as Arrhenius theory of collision. Now, when we explore this theory, we start with a simplified case only. What is the simplified case? We are looking at a bimolecular reaction in gaseous phase following a single step reaction mechanism. क्या मतलब हो गया इतनी सारी इंग्लिश का? इस इंग्लिश का मतलब ये हो गया है कि हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब R1 प्लस R2 रिएक्टेंट एक दूसरे से टकराए और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. ठीक है? ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नहीं है, मल्टी स्टेप मैकेनिज्म नहीं है कि पहले रेडिकल कार्बोकटायन कार्बोअनायन बनेगा और फिर वो उसके लाइक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करेगा, जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो. ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर शुरू हो गया क्या ऑर्गेनिक में? खत्म हो गया, राइट? सो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिज्म्स के बारे में, राइट? मल्टी स्टेप मैकेनिज्म होते हैं किसी एक रिएक्शन के. सो वी आर नॉट रियली bothered about those multi-step reactions right now. हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड केस, कि एक मॉलिक्यूल आया, दूसरा मॉलिक्यूल आया, आपस में भिड़े और रिएक्शन हो गया. ठीक है? एंड यहाँ पर बाय मॉलिक्यूलर वर्ड का भी इंपॉर्टेंस है. लाइक वी आर लुकिंग एट टू मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ईच अदर. एंड हम लोग अभी gaseous phase में बात कर रहे हैं, like the reaction species is in gaseous phase, so that we can apply our understanding of KTG, kinetic theory of gases. ठीक है? अब यहां पर नोटिस करना, इस सिंप्लीफाइड केस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है. ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? A2 प्लस B2 इज गिविंग 2AB, राइट? ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है, राइट? और ये रिएक्शन कैसा हो रहा है? यहाँ पर A2 B2 कोलाइड कर रहे हैं और AB फॉर्म हो रहा है. अब ये जो अर्हीनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन्स है, ठीक है, ये क्या कहती है? ये कहती है दैट हम लोग रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने वैसे तो शायद ऑर्गेनिक में ये चीज देख ली होगी, पढ़ ली होगी. हाउएवर यहाँ पर हम लोग थोड़ा और बेसिक्स से इस चीज को समझेंगे. दैट रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट जाते हैं तो अर्हीनियस थ्योरी कहती है दैट वी डोंट गो डायरेक्टली. मतलब ऐसा नहीं होता दैट रिएक्टेंट और रिएक्टेंट आपस में टकराए और बूम प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. ठीक है? व्हाट इट सेज इज दैट वी गो थ्रू एन अनस्टेबल स्टेट. एक ऐसी स्टेट के थ्रू जाते हैं जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही होती है. जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ए और ए के बीच में बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे, ए और बी के बीच में बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे. ठीक है? बॉन्ड्स फॉर्मिंग एंड बॉन्ड्स ब्रेकिंग happen in this state. This is called as a transition state or activated complex state. ठीक है? ये अनस्टेबल होता है. इसका एनर्जी लेवल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से ज्यादा होता है. ठीक है? नाउ इसी चीज को अगर हम लोग एनर्जी
के ग्राफ पर, एनर्जी प्रोफाइल बोलते हैं हम लोग, इस पर ऑब्जर्व करें तो ये कैसा दिखेगा, राइट? आई एम श्योर आप लोगों ने ये ऑर्गेनिक में देखा हुआ है, राइट? हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ? वाई एक्सिस पर एनर्जी एंड लेफ्ट एक्सिस पर सॉरी एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, है ना? तो इसमें कैसा हो रहा है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, what we are saying here is we have made an assumption, ठीक है, we have made an assumption that ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है? ये assumption मैंने यहाँ पर ले लिया। ये assumption लेने की वजह से मैंने क्या करा, मैंने रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल नीचे लिखा है और प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल ऊपर लिखा है, ठीक है? रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल नीचे लिखा है, प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल उनसे ऊपर लिखा है। अगर मैं यहाँ पर ये अज्यूम कर लेता एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, तो मुझे प्रोडक्ट्स को फिर रिएक्टेंट्स के नीचे लिखना होता, ठीक है, विच कैन बी अ केस अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता तो, ठीक है? बट यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया दैट ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल है, ई आर कह रहे हैं हम इसको, एंड प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल ई पी, ठीक है? एंड एज यू ऑल नो दैट डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक है? अब ये जो थ्योरी है ये क्या कह रही है, ये थ्योरी यही कह रही है दैट हम लोग डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स नहीं जाते हैं, मतलब आपको एनर्जी सप्लाई कर दें रिएक्टेंट्स को, या रिएक्टेंट्स जो है वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लें फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, तो ऐसा नहीं है दैट दे डायरेक्टली गो इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है? दे in fact go through a transition state, an unstable higher energy transition state or activated complex. ये जो अनस्टेबल स्टेट है इसका एनर्जी लेवल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों से ही ज्यादा रहता है, and in order to go from reactants to products they need to overcome this energy barrier. ये एनर्जी बैरियर दिख रहा है आपको, जो ये ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल है, ठीक है, इसको हम लोग थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल बताया गया, प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल बताया गया, ठीक है, वैसे इसको ईटी थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोल देते हैं। दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जो एनर्जी गैप हो गया बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट्स, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? एफ यहाँ पे लगाया है बिकॉज ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? सो ये एनर्जी बैरियर ओवरकम करना पड़ता है बिफोर रीचिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, ठीक है? नाउ बैकवर्ड भी इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करा जाता है, लाइक द बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल। बैकवर्ड रिएक्शन में कैसा लिखा है दैट अगर हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाना है तो अगेन ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते, वी अगेन हैव टू लाइक go through a transition state only, and यहाँ पर you can see the energy gap between the transition state and the products, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं वापस से, एक्टिवेशन एनर्जी। बट ये कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, एज यू कैन रीड हियर, बैकवर्ड, ठीक है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन यू सी दीज इक्वेशंस होल्डिंग ट्रू? जो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स होता ही है। कैन यू ऑल्सो सी दैट डेल्टा एच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड? ये जो डेल्टा एच रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? दिख रहा है आपको ये? अच्छा, अगर दिख रहा है और समझ में आ रहा है तो जरा ये 4 क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर दो मेरे लिए।
based on the reading of this graph? फटाफट फटाफट, साइन का ध्यान रखना, वही लर्निंग है इन चारों क्वेश्चन की, और कुछ है ही नहीं. आए आंसर्स? फटाफट फटाफट देख लेते हैं. देखो यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है, मतलब डेल्टा एच जो है वो -200 है, राइट. -200 इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड. ई ए फॉरवर्ड लिखा हुआ है 80 माइनस ई ए बैकवर्ड. तो ई ए बैकवर्ड कितना आ गया? 280. ठीक है. फिर दूसरे वाले में -20 इज इक्वल टू 60 माइनस ई ए बैकवर्ड, राइट. वापस से आ गया ये 80. ठीक है. अगेन फिर यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब -30 इज डेल्टा एच. ठीक है. एंड ई ए फॉरवर्ड इज 70, तो माइनस ई ए बैकवर्ड कितना आ गया? 100, है ना. एंड देन यहाँ पर वापस से सेम ही चीज है, -10 इज इक्वल टू 50 माइनस ई ए बैकवर्ड. तो ये कितना आ जाएगा? 60. सी सी डी डी, राइट. ग्राफ रीड करना आ गया सबको? ऑलराइट. नाउ अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं. Over and above this understanding of this theory, so what this theory is also trying to highlight, इसको अब समझना. The theory says that these reactions are happening because of, हाँ नहीं, ये तो मतलब मेंस लेवल सीईटी लेवल के भी नीचे है यार, बट जस्ट एक बार के लिए वर्ड्स के साथ में कंफर्ट आना चाहिए. ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, और साइंस के साथ में. दैट्स व्हाई आई मेड यू प्रैक्टिस दिस. ऑल्दो लाइक पहले जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इट इज अ चैलेंज और समथिंग.
ठीक है ना। अब यहाँ पे नोटिस करना, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। All right. So yeah, this theory is also saying that not all collisions yield product molecules. Right? इसके पहले का जो बैकग्राउंड था इस थ्योरी का वो यही था कि रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन हो रहा है तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, राइट? बट not all collision yield product molecules. One of the important criteria for a collision to be effective, ये आपको समझ में आ जाएगा, that is the energy criteria. ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि आपको अभी जो हमने ऊपर ग्राफ या ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करी उसे समझ में आ जाएगा। ये क्या कहता है, दैट कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में इतना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, जब वो आपस में एक दूसरे को मीट अप कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो दे आर एबल टू ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, राइट? ये पहला क्राइटेरिया एवरीवन अग्रीज, अंडरस्टैंड्स। ऐसा नहीं होगा ना कि एक मॉलिक्यूल आ रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है और वो धीरे धीरे आ रहे हैं और एक दूसरे को ऐसे लाइक टच करके निकल जा रहे हैं धीरे कम स्पीड पे, तो दोज कोलिजन्स आर गोइंग टू बी इफेक्टिव or would have sufficient energy to overcome the energy barriers. The collision should happen with sufficient energy so as to overcome this energy barrier of activated complex. ठीक है, ये एनर्जी बैरियर समझ में आया? अच्छा, नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है इन दीज कोलिजन्स which is called as an orientation criteria. ये ओरिएंटेशन क्राइटेरिया क्यों आया, कहां से आया, नोटिस करना। ये ओरिएंटेशन क्राइटेरिया क्या कह रहा है, सिंस कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, so a collision has to occur with proper orientation of molecules. So जैसा आपने नोटिस किया, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था A2 plus B2 is forming AB, तो इसमें ये A2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब B2 मॉलिक्यूल मान लो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, like they are colliding but they are not colliding in proper orientation. प्रॉपर ओरिएंटेशन में कैसा होना चाहिए, ए का एटम बी के एटम के साथ कोलाइड करना चाहिए ताकि उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी आए, राइट? बट यहाँ पर कैसा है, एनी रैंडम ओरिएंटेशन आई हैव टेकन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोलिजन हो रहा है तो दिस इज नॉट गोइंग टू यील्ड अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अ कोलिजन इवन इफ देयर इज सफिशिएंट एनर्जी इन दिस कोलिजन, राइट? दिस इजंट गोइंग टू यील्ड अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। जब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में, सॉरी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे, ठीक है, लाइक ए का एटम बी के साथ में मीट अप कर रहा है, देन ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैन हैपन, एंड दिस इज बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना चाहिए ना, और ऑर्बिटल्स कैसे रैंडमली थोड़ा प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट सर्टेन डायरेक्शनल ओरिएंटेशंस, राइट? तो ये ओरिएंटेशन का क्राइटेरिया समझ में आया? सो ये थ्योरी क्या कह रही है, यहाँ पे आप नोटिस करना, ये थ्योरी कह रही है, ठीक है, इनफैक्ट मेरे को इसको उठा के ऊपर लिख देना चाहिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कशन बोला
in the start of this theory, that rate of reaction can be related to the frequency of collisions. But what this theory also says is that rate of reaction is definitely much lesser. Okay, it is much lesser, I would say, than the frequency of collision. Why? Because not all collisions are effective. Do we all agree to this statement? ये समझ में आ रहा है सबको? And what are the criteria? Like what this statement is saying, that for a collision to be effective, ये दो important criteria रहेंगे, एक energy का criteria and एक orientation का criteria. So if I was to theoretically write the rate of reaction, okay, then what I should do is I should write rate of reaction. Okay, this is, or this should be directly proportional to the frequency of collision multiplied by orientation criteria multiplied by energy criteria, right? So you can say rate of reaction should be equal to जितने total collisions हो रहे हैं multiplied by fraction which satisfies orientation criteria and fraction which satisfies energy criteria. तो दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होंगे, ऐसे ही कोलिजन्स को हमें सक्सेसफुल कोलिजन मानना चाहिए, which should give us the idea of rate of reaction. क्या ये स्टेटमेंट सेंस बना रहा है आपके लिए? अब आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ? अच्छा, तो अब आप नोटिस करना, बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये तीनों चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं, ठीक है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रोवाइड्स अस एन एस्टिमेट ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स. जो पहला वाला है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, राइट, इसका एस्टिमेट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पहले केटीजी से, राइट? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना वो z वाला एक्सप्रेशन, z इक्वल टू समथिंग समथिंग वाला, तो वो हम केटीजी से देख चुके हैं. अब यहां पर नोटिस करना ये जो एनर्जी वाला क्राइटेरिया है ये भी हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मिलता है, ठीक है? ऑल्दो हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली आपके सामने रिजल्ट लिखूंगा, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही मिलता है. सो ये जो एनर्जी वाला क्राइटेरिया है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, व्हाट वी नीड टू राइट इज, नोटिस करना है यहाँ पर, ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसको तो हम लोग z से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, जो केटीजी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. और ये जो एनर्जी क्राइटेरिया है इसमें हमें लिखना है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स. व्हाट डू आई मीन बाय फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स? दैट इज मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन EA, molecules that are having energy greater than the activation energy barrier. अब ये कैसे कैलकुलेट होता था? डू यू रिमेंबर केटीजी में we had figured out or we had talked about speed distribution and energy distribution, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये याद है आपको? स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स एक्सिस पर U होता था, ठीक है, और ऐसा बेल शेप कर्व मिलता था, राइट? वाई एक्सिस पे क्या होता था? वाई एक्सिस पर 1/n dn/du ऐसे रहता था. एंड व्हाट डिड द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट?
लेट्स से एक स्पीड u1 है और एक स्पीड u2 है, और उनके बीच का एरिया अंडर द ग्राफ को हम लोग कैसे रीड करते थे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u1 एंड u2, याद आ रहा है? एंड इनफैक्ट मैंने आप लोगों को साथ में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया था। दैट काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इसी तरीके का बेल शेप्ड आता है। ठीक है, ऐसा ही बेल शेप्ड आता है, एंड उसको भी अपन इसी तरीके से रीड करते हैं, दैट एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, व्हेन वी प्लॉट 1 by n dn by de versus e, we get area under the graph as the fraction of molecules having energy between E1 and E2. So if I ask you what will be the fraction of molecules having energy greater than EA, तो आप इसी ग्राफ को यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप ढूंढोगे EA कहाँ पर है, राइट, ये EA मिल जाएगा। एंड what will be the fraction of molecules having energy greater than EA? It will be this area under the graph, है कि नहीं? What does this area under the graph represent? Energy or fraction of molecules having energy greater than EA? है कि नहीं? सो ये चीज हम लोग KTG से इंटीग्रेशन करके एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। ठीक है, और जब वो मेहनत करते हैं, ठीक है, ये था ना, मतलब लाइक आई हैड इनफैक्ट लॉन्ग टाइम बैक, कहाँ गए, गैशियस स्टेट चैप्टर कब कराया था आप लोगों को? गैशियस स्टेट चैप्टर यहाँ पर, यू रिमेम्बर गैशियस स्टेट में अपन ने KTG, हाँ KTG में देखा था ना, ये तो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। फिर उसके बाद में इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें समझी थी, देखी थी, फिर ये, हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन याद है, ऐसे लिखते थे, राइट? ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग क्या करते थे, ई को और डी को सब्स्टिट्यूट कर देते इन दिस, और ये हमारा ये इक्वेशन आ जाता था, राइट? और इसका इंटीग्रेशन अब मैं ई से इन्फिनिटी करूंगा, राइट? तो मुझे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी मोर देन ई मिल जाएगा ना, बट ये इंटीग्रेशन मुझे करना आता नहीं है, so I will not do that integration or derivation in front of you. I will directly write the result. The result comes out to be e की power minus EA by RT. What does this e की power minus EA by RT represent? It represents, यहाँ पे notice करना, fraction of active molecules, that is molecules with energy greater than EA. ठीक है, सीधे सीधे याद कर लेना है, ये समझ में आया? ठीक है, डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करना है, ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है। ठीक है, तो ये तो एनर्जी क्राइटेरिया के बारे में बात हुई। ठीक है, ओरिएंटेशन क्राइटेरिया के बारे में नोटिस करना। जो ओरिएंटेशन क्राइटेरिया है उसको हम लोग स्टेरिक फैक्टर भी बोल देते हैं, एंड उसको इस स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ ये जो ओरिएंटेशन क्राइटेरिया है, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो एस्टिमेटेड वाया KTG। ठीक है, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज एस्टिमेटेड वाया KTG। इट इज समथिंग विच इज क्वाइट ट्रिकी एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट फॉर अस राइट नाउ, तो हम लोग इसके एस्टिमेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो आई विल टेल यू सम आइडिया अबाउट इट। ठीक है, ध्यान से सुनना। मुझे अगर ये ओरिएंटेशन क्राइटेरिया के बारे में सोचना है, तो ये ओरिएंटेशन क्राइटेरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
this represents the fraction of collisions which happen with correct orientation. मतलब ये एक A का मॉलिक्यूल है और ये एक B का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपस में मीट कर रहे हैं. नाउ there are many possible orientations in which they can collide. ठीक है, मान लो इसी तरीके से सिंपल मॉलिक्यूल है, ये A का मॉलिक्यूल ऐसा है और B2 का मॉलिक्यूल ऐसा है, राइट. अब आप नोटिस करो दैट जब ये आपस में मीटअप करेंगे तो इनका कुछ एक रिएक्शन क्रॉस सेक्शनल या कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, राइट. ये कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे होता है, जैसे आपको याद है केटीजी में अपन ने बात करा था कि एक ये मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल इस डैश्ड लाइन के अंडर आ गया, इसका सेंटर दूसरे वाले का सेंटर, तो कोलिजन होगा ही होगा. याद आ रहा है ऐसा केटीजे में कभी कुछ करा था जब हम लोग वॉन डर वाल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ बी डिफाइन करते हो, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज जनरल कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, अब ये तो क्या है, किसी एनी जनरल कोलिजन के लिए मीट करने की बात है. ठीक है, बट हम इसमें बोल सकते हैं कि मान लो अगर ये मॉलिक्यूल्स ऐसे कोलाइड कर रहे हैं तो इट इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन. ठीक है, लाइक दे आर नॉट प्रॉपरली कोलाइडिंग. हाँ, जब मेरा जो ये सेंटर है, ठीक है, ये मान लो इस रीजन में कहीं पर आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पर आ रहा हो या यहाँ पर आ रहा हो, राइट, और फिर मीटअप कर रहे हैं, तो आई कैन से दैट इट कुड बी एन इफेक्टिव कोलिजन. मतलब लाइक द एटम्स कुड बी कोलाइडिंग प्रॉपरली ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके. तो ये जो जनरल क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका एक पार्ट होगा जिसको हम लोग रिएक्शन कोलिजन क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन कर सकते हैं. तो जो दोनों का रेशियो होगा उसको हम लोग इस फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब उसका जो कैलकुलेशन है, उसकी जो बैकग्राउंड है वो अपने सिलेबस में है नहीं, सो वी डोंट रियली गेट इनटू दैट. हम लोग उसको बस एक टर्म पी से डिफाइन कर देते हैं, स्टेरिक फैक्टर बोल के. ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे आप नोटिस करना, ये जो P है इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, दैट स्टेरिक फैक्टर captures the probability of correct orientation of collision. Theoretically, its value lies between 0 to 1, corresponding to the ratio of reaction cross-sectional area of collision to general cross-sectional area of collision. ठीक है, ऐसे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर बेस्ड इसका कैलकुलेशन करा जाता है. ठीक है, वी डोंट नीड टू गेट इनटू एनी डिटेल्स ऑफ दिस. ठीक है, एनी सिग्निफिकेंट डिटेल्स ऑफ दिस, बस इतना ध्यान में रखना दैट दिस इज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड. ठीक है, अब यहां पे नोटिस करना, ये रेट ऑफ रिएक्शन से मैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन पे चला गया. कैसे, मैंने यहां पर अज्यूम करा है, assuming concentration of reaction species is constant and 1 molar. ठीक है, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज k इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर, है कि नहीं. और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लूं तो ऑर्डर भले ही कुछ भी हो, आई कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, है कि नहीं. R is equal to K times concentration raised to the power of order. अगर मैं concentration 1 molar ले लूं तो I can say that rate of reaction is equal to the rate constant. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया जाता है specific rate of reaction. ठीक है, specific rate of reaction is rate constant only. तो ये क्या लिखा हुआ है, K is equal to Z into P into E की पावर माइनस ए बाय आर टी. राइट, एक एक टर्म ढंग से समझ लेंगे. Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन A2 एंड B2 मॉलिक्यूल्स.
right? What is P representing? P is representing steric factor. ठीक है, the factor that captures the orientation criteria. Now इन दोनों को क्लब करके, Z और P को क्लब करके एक्चुअली एक नया टर्म A बना देते हैं, A लिख देते हैं, that is called as Arrhenius frequency factor. ठीक है, ये जो A है ये Z और P का कंबाइंड को लिख देते हैं, इसको कहते हैं Arrhenius frequency factor. ठीक है, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ठीक है, बाकी EA क्या है? EA आपको पता है, EA stands for activation energy, R is your gas constant and T is your temperature. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा है? ये एक्सप्रेशन क्या लिखा जा रहा है? ये एक थियोरेटिकल मॉडल है ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोलिजन्स. अब ये सब हमने मेहनत क्यों करी है? बिकॉज ये सब मेहनत करने से अब हमें समझ में आएगा that how rate of reaction depends on temperature. ठीक है, because of this expression we can see, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना that ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ के और रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, यहाँ पे आप रीड करोगे इन द अबव एक्सप्रेशन. ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ए बाय आर टी, जो टेम्परेचर का टर्म है वो दो जगह अपीयर करता है. ठीक है, कहाँ कहाँ अपीयर कर रहा है? एक तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है ना सामने, दैट टेम्परेचर का टर्म यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल टर्म में अपीयर कर रहा है. और एक और जगह अपीयर करता है, ये जो ए है इसके अंदर भी टेम्परेचर का टर्म अपीयर करता है. इनफैक्ट आप लोगों ने पढ़ा भी है जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एवरेज. और यू एवरेज किसके प्रोपोर्शनल होता है? रूट टी के, है कि नहीं? राइट. सो दिस टर्म सेज दैट इस एक्सप्रेशन में जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो दो जगह दिख रहा है, एक तो ए के टर्म में और एक ई की पावर माइनस ए बाय आर टी लाइक एक्सपोनेंशियल टर्म में. ठीक है, बट हम लोग सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग रखते हैं यहाँ पर. व्हाट वी डू इज फॉर अ मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज वी फोकस ओनली ऑन द एक्सपोनेंशियल टर्म. ठीक है, ए को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं. जो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता हुआ टर्म है इसको हम लोग मान लेते हैं कि दैट दिस इज कांस्टेंट ओनली. हम लोग इतना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज नहीं कर रहे हैं. तो जो ओनली डिपेंडेंस दैट इज देयर इज इन द एक्सपोनेंशियल टर्म. ठीक है, तो अगर आप मुझसे लाइक इसका ग्राफ, इस इक्वेशन का लॉन लेने के लिए बोलोगे दोनों तरफ, लाइक k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, ठीक है, ऐसा आप करने के लिए बोलोगे तो इसमें मैं कैसा बोलूंगा? लॉन k इज इक्वल टू लॉन a माइनस ए बाय आर टी, और लॉन a को मैं कांस्टेंट मान लूंगा, दैट विल बी लाइक द y इंटरसेप्ट. ठीक है, ऑफ दिस ग्राफ. एंड ए अपॉन आर माइनस ए अपॉन आर विल बी द स्लोप. ठीक है, this is how we will study the dependence of rate constant on temperature. ठीक है, you can see that जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, as temperature increases the rate constant value increase होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा यहाँ पर, यानी कि e की पावर वाला टर्म लाइक ये कम हो जाएगा. ठीक है, और ये खुद डिनोमिनेटर में रहेगा तो k का वैल्यू बढ़ जाएगा. राइट, समझ में आ रहा है? ये टेम्परेचर बढ़ने से k कैसे बढ़ रहा है मैथमेटिकली भी समझ में आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो थिंक दैट ग्रेटर द एनर्जी देन ग्रेटर विल बी द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स ना.
ये फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन ये, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है. इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है यहां से हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? ऑल राइट. अब इसमें आप नोटिस करना, ठीक है, फर्दर नोटिस, अगर T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 होगा, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 होगा, तो मैं जो इक्वेशन है इस तरीके से लिख सकता हूँ, K1 इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन RT1 एंड K2 इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन RT2, एंड देन आई कैन लाइक डिवाइड द टू एंड टेक ln, सो ln K2 बाय K1 आ जाएगा ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, या फिर अगर log के टर्म्स में लिख रहे हैं तो log K2 अपॉन K1 will come out to be EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus T2. Right? समझ में आ रहा है ये एक्सप्रेशन? ठीक है. अब ये एक्सप्रेशन पर बेस्ड जो ऊपर हमने लिखा है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना और कैलकुलेटर यूज कर लेना. ये 14.39 है. ठीक है, 14.39 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको ये तीन चीजें निकालनी है. कैलकुलेटर यूज करना, कैलकुलेशंस अदरवाइज बहुत गंदी लगेंगी. जस्ट सी इफ यू आर एबल टू रीड द एक्सप्रेशन एंड अवॉइड स्मॉल एरर्स, स्मॉल केयरलेस मिस्टेक्स.
राइट. सो पहला तो लाइक यू हैव टू जस्ट रीड द इक्वेशन प्रॉपर्ली. लॉग वाला लेना, लॉन वाला नहीं, क्योंकि लॉग में दिया हुआ है. तो लॉग के, ठीक है. एंड प्लीज यूज स्मॉल के. हाँ, बड़ा के मत यूज करना. बड़ा के इज फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट. वो आपने लास्ट क्लास में सीखा भी होगा जब अपन रिवर्सिबल काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे. दैट बड़ा के इज नॉट फॉर दिस थिंग. बड़ा के इज नॉट फॉर rate constant, that is for equilibrium constant. So यहाँ से आप इक्वेट करोगे. हाँ, ठीक है सर्वेश, करेक्ट आ रहा है आपका. 239 किलो जूल. ये अपॉन 2.303 आर विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर 4. यू पुट द आर का वैल्यू इन ऐसा यूनिट्स, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई. ठीक है. फर्स्ट पार्ट का आंसर सबका आ गया. इज एवरीवन कंफर्टेबल विद द फर्स्ट पार्ट? सेकेंड पार्ट का आया आंसर. टेम्परेचर जब हाफ लाइफ 256 मिनट्स होगी, अराउंड 670 केल्विन आ रहा है. इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है. हाँ, 668 678, राइट सर्वेश. ईशान, इसमें ये मिनट्स का सेकंड्स में कन्वर्जन करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि जो के है वो सेकंड इनवर्स की यूनिट में है. ठीक है. एंड देन यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, जो अपना ओरिजिनल एक्सप्रेशन है. ठीक है. तो अगेन द कैलकुलेशंस आर प्रीटी नास्टी. कैलकुलेटर से आप करोगे तो आपका यस अराउंड 668.9 या 670 केल्विन के आसपास आ जाएगा. करेक्ट.
थर्ड पार्ट में मतलब like just e की power minus e upon RT, that is what the fraction of active molecules represent. ठीक है, तीनों पार्ट समझ में आ गए आप लोगों को कैसे करने, हाउ टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो, चलो फटाफट. ये वाला क्वेश्चन बता दो. And again, I don't mind you using calculator again in this. Calculations are not that good. फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया होगा, राइट. ln k2 by k1 is equal to a upon r 1 upon t1 minus t2. इसमें the only catch that you'll have to remember is that use the temperature in Kelvin. ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में मत यूज कर लेना, वो कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. हाँ ठीक है, समझ में आया. ये अराउंड 28.9 किलो जूल आ रहा है. ठीक है, मेक सेंस. So this is how dependence of temperature is on the rate of reaction. ठीक है, एक just give me 1 minute, I'll rub the answer. एक और कोई क्वेश्चन का आंसर कर दो. ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट रीडिंग द ग्राफ प्रॉपर्ली. ये वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट.
राइट, सिंपल है, सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। अगेन आर का वैल्यू कैलोरी की यूनिट में यूज करना है ना, जो ईए का वैल्यू है वो आर के बराबर आ जाता है एंड कैलोरीज में दिया हुआ है, राइट। सो आर का वैल्यू इन कैलोरीज इज 2 ओनली। ठीक है, अच्छा अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी सिंपल ही है, ज्यादा कुछ चैलेंजिंग नहीं है इसमें। आप नोटिस करना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कैसा रहता है। A catalyst alters the rate of reaction by changing its mechanism. So what it really impacts, यहाँ पे notice करना, a catalyst, a positive catalyst lowers the activation energy barrier. Right? If you see this expression, K is equal to A into E की power minus EA upon RT. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, K बढ़ रहा है। अब आप यहाँ पे नोटिस करना, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अगर हम कम कर देंगे तो उससे भी रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा ना। So this is how actually a catalyst works. Catalyst affects the reaction mechanism. Okay? It changes the reaction mechanism which results in lowering of the activation energy barrier. Right? जैसे अगर मुझे मान लो यहाँ पर इसको represent करना है, like if I want to represent this on a graph, तो ये कैसा दिखेगा आप नोटिस करना। ये मेरा एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन पाथवे है, लाइक मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूँ बट थ्रू अ transition state and that transition state is of a really high energy level. ठीक है, that is my threshold energy level or you can say activation energy barrier. ठीक है, बट अब यही मुझे, ठीक है, I have to like analyze this same reaction or do the same reaction but with the help of a catalyst. ठीक है, then again if I go from reaction coordinate, if I am going from the same reactants, ये reactants का level हो गया और ये products का level था, right? ये इसी ग्राफ के हिसाब से मैंने बनाया है, but then मेरा activation energy का barrier relatively छोटा हो जाएगा। ठीक है, this is my catalyzed pathway. ये reactant है, ये product है, right? And you can see that EA forward, इसको मैं EA dash बोल देता हूँ, right? This is EA dash forward. ठीक है, this is relatively lesser. Oops. As compared to the previous one. ठीक है, and similarly even the backward, like this is also a noticeable thing that a catalyst increases the rate of both forward and backward reaction. ठीक है, backward reaction का भी आप नोटिस करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा, राइट? कैन यू सी दैट? So catalyst increases the rate of both forward and backward reaction. ठीक है, not by the same factor. ठीक है, दोनों को सेम फैक्टर से नहीं अफेक्ट करता है, लाइक दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी का जो चेंज होगा वो अलग अलग ही है। ठीक है, जो रेशियो में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू
know from chemical equilibrium chapter that catalyst does not influence the thermodynamics. Like ये जो reaction reactant और product का energy level है वो नहीं change होगा, वो as it is रहेगा. Like जो delta H था पहले वो delta H अभी भी उतना ही रहेगा. Right? Delta H doesn't change. Delta H, delta G, delta S, any other thermodynamic parameter of the reaction won't change. They remain as it is. ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आसान रहते हैं. ठीक है, लेट मी रब द आंसर, और आप ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो एंड लेट मी नो द आंसर. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. फटाफट ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. राइट, तो यहाँ पर अब आपका आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, 327 डिग्री सेंटीग्रेड. लाइक आपने सिंपली यहाँ पे करा होगा के कैटलाइज इज इक्वल टू के अनकैटलाइज्ड. राइट, कैटलाइज वाले में क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है. राइट, एंड डिफरेंट टेम्परेचर पे भी करा जा रहा है. सो इवेंचुअली इफ यू इक्वेट बोथ द के, ठीक है, स्मॉल के इक्वेट करना, स्मॉल के इज द रेट कांस्टेंट, तो ये ए अपॉन आर टी और बेसिकली ए डैश अपॉन आर टी डैश इक्वेट करके आपको समझ में आ जाएगा.
ग्रेट. सो आपको इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी समझ में आ गया है? ठीक है. तो बेस्ड ऑन दिस अब आप और सिग्निफिकेंट होमवर्क ट्राई कर सकते हो. मैं आप लोगों को आज होमवर्क दूंगा, वो आप ट्राई करना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. एंड एक ही लेक्चर चाहिए होगा मुझे, देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. छोटा सा ही पार्ट बचा है आखिरी का, विच इज रिलेटेड टू दिस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS अप्रोक्सीमेशन. ऑल्दो आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा आपको आइडिया पहले से ही होगा इसके बारे में. ऑर्गेनिक में आप लोग देखते हो, सुनते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ ही लिया है चैप्टर. ठीक है. सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करनी है बस. ठीक है. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? एनी अदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन देयर माइंड्स? हाँ, आपके दिमाग में डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये सर कैटलिस्ट वर्क कैसे कर रहा है, कैटलिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे कर रहा है. तो वैसे तो एक और चैप्टर आएगा, सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग एडजॉर्प्शन के बारे में बताएंगे आपको. ठीक है. बट आपको चाहिए तो मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ, विच कैन लाइक गिव यू सम आइडिया ऑफ हाउ डू दीज कैटलिस्ट वर्क. ठीक है. उसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बट आप एटलीस्ट ये चीज़ नोटिस कर पाओगे दैट कैटलिस्ट जो है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. यू विल गेट सम आइडिया. गिव मी 1 minute, आई जस्ट क्विकली शेयर दैट वीडियो. कहाँ गया, कहाँ गया? अरे प्लेलिस्ट कहाँ पे होती है यार ये? तो यूट्यूब बार बार अपना इंटरफेस चेंज करता रहता है, समझ में ही नहीं आता. Just give me 1 minute. What nonsense. अच्छा अच्छा, मैं क्रोम पर हूँ, तभी मैं सोचूं. वेट वेट वेट. हाँ, नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक कंटिन्यू कर लेंगे फिर. हाँ, नेक्स्ट क्लास में अपन डाउट डिस्कस कर रहे हैं ना केवल. जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा वो आप अटेम्प्ट करो, फिर हम लोग उसके डाउट्स डिस्कस करेंगे. कहाँ गया?
यार वो हट गया यूट्यूब से वीडियो, आई थिंक सो। ठीक है, कोई और नहीं, नहीं मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये वाला, ठीक है, छोटा सा ही वीडियो है, बट विल गिव यू, इसमें कुछ कुछ टर्म्स नहीं समझ में आएंगे, बट दैट्स ओके, हम लोग बाद में देखेंगे। आई विल मेक यू वॉच दिस वीडियो अगेन व्हेन वी विल बी लाइक looking at another chapter, surface chemistry। ठीक है, हाँ आयोनिक मैंने बताया ना, आयोनिक जनरली टफ पड़ेगा, दैट इज अ चैलेंज, एंड उसमें मल्टीपल आइट्रेशंस लगते हैं फॉर यू टू बी एबल टू बिकम गुड एट। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, ऑल राइट देन, आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। होमवर्क में भेजता हूँ, आप लोग ट्राई करना, देन विल डिस्कस। चलो, ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।